Good morning, my dear students and friends. Hi, this is Sudhir and welcomes you all on today's class. And today in this video, we will learn about the decimals. So without wasting any time, let's begin with the topic. So dear student, this is one of the most important chapter, okay? And the name is decimal. So first of all, we have to learn about the decimal. So dear student, decimal is a fraction. Listen, what is that? It is a special fraction, okay? Having the denominator 10, 100, 1000, 10,000 and so on. That means in the denominator, we want the power of 10. हमें क्या चाहिए नीचे में? Power of 10 चाहिए. Okay? In this example, you can see that there is 10 in the denominator. Here there is 100. Here there is 1000. Here is 10. Okay? No doubt. It is a mixed number, but we can represent this mixed number as a decimal. Okay? We will learn how to convert the fraction into decimal and decimal into fraction in the next video. Okay? So first of all, we have to learn what is meant by decimal numbers. So dear students, you have observe that there are some numbers having the point in between them and consist of numbers. Okay, here you can see that it is a combination of numbers, but there is a difference is there is a one point. So what is why we need this point? Okay, and what is the meaning of this point? So listen carefully here. First of all, when you are a small child, when you was a small child, यू स्टार्टेड रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यस आपने सबसे पहले बोलना सीखा उसके बाद में लिखना सीखा सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will learn how to read a decimal number. This is a decimal number. So you can see that before the decimal point there is two digit. Yes, that means towards the left hand side of the decimal point, actually this is the point and the name of this point is decimal point. Okay, this is decimal point. And now we will understand why we need this decimal point. हमें इस decimal point की जरूरत ही क्यों है? ठीक है, तो चलिए first of all we will learn how to read the decimal numbers. Okay, so this is a 25. Okay, we will read this number before the decimal number, the decimal point. इस decimal point के पहले जो number है हम लोग उसको continue read करेंगे. This is a 25. And after the decimal point, you will see that there is 3 points. Oh, sorry, there is 3 numbers. Okay, there are 3 digits, 2, 3, and 1. So how we will read it? We will read this number 25. Okay, we have to combine this number. It is 25. But after the decimal point, we will read like this. 231 means what? How we will read this number? We will read this number as 25.231. Okay, let's take one more number. 567.035. Okay, so how to read this number? Before the decimal point, this is the whole part. Listen carefully, whole part. Okay, and after the decimal point, this is a fractional. Okay, fractional. Okay, fractional part or this is a decimal part. ये कौन सा part है? Decimal part. ठीक है, so listen carefully. These numbers, that means the digit after the decimal point, we will read separately. उसको एक एक अलग अलग separately read करना है. 567.035. Okay, 5892.611, sorry, 715. In this number, you can see that there are 4 digits before the decimal point and there are 4 digits after the decimal point. So we will read this number as 5892. Okay, we will read this number because this is a whole part. Okay, 5892 point 6715. You have to read this number. That means you have to read the digit after the decimal point separately. Look how I'm reading 5892.6715. Okay, you have to read the digit after the decimal point separately. So I hope you understood how to read and write the decimal numbers. So अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है, write down the decimal number in words. So you have to write 25.231, 567.035, 5892.6715. Okay, so this is all about the reading and writing
decimal number. Now dear students, I'm going towards the origin of decimal. अब मैं इसके बाद जा रहा हूँ डेसिमल के ओरिजिन की ओर कि डेसिमल आया कहाँ से, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया. सो पे अटेंशन टुवर्ड्स द बोर्ड. ओके, सबको आगे देखना है, ठीक है. ओके, सो आई थिंक we will learn about the origin of decimal in the next video. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ओरिजिन समझेंगे. सो स्टे कंटिन्यू, स्टे विथ मी, ओके. डोंट गो एनीवेयर, आई एम सेंडिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. Okay dear students, so now I am moving towards the place value chart. Okay, मैं place value chart की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ. और I know that you have already learned about the place value chart, but it is very very important to understand the decimal. Okay, because in this video I am going to tell you about the origin of decimal, how the decimal came into the existence, कैसे decimal इस दुनिया में आया. ठीक है. Okay, so चलिए समझते हैं इस place value chart को. Suppose there is only one, there is a one number and the number is one. कौन सा नंबर है मेरे पास? वन है, ठीक है. अब जब मैं वन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इफ आई विल मल्टीप्लाई वन बाय 10, जब मैं वन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो व्हाट विल हैपन? 1 into 10 विल बी 10. यस, 1 10 सा क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा. सो हाउ कैन आई राइट दिस 10? मुझे 10 को ऐसा लिखना पड़ेगा. 1 is on 10's place and 0 will be on 1's place. ओके, ठीक है, अच्छा ध्यान से समझो. ठीक है, अब मुझे उस 10 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना है. क्या करूंगा मैं? 10 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो आई विल गेट 100. सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट 100? आई विल राइट 1 ऑन द 100 प्लेस एंड 0 ऑन द 10th प्लेस, 0 on the 1's प्लेस. ओके, वेरी गुड. नाउ इफ आई विल मल्टीप्लाई द 100, नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई द 100 अगेन. ओके, बाय 10. मुझे फिर से 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. अब जैसे ही मैं उस 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा. यस, द आंसर इज 1000. सो नाउ हाउ कैन आई रिप्रेजेंट 1000? आई विल राइट 1 एट द 1000 प्लेस, 0 एट द 10th प्लेस, 0 एट द 100 प्लेस एंड 0 एट द 1's प्लेस. ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे हो गया, समझ लो. ठीक है, 1 इज ऑन द 1000, 0 on the 100, 0 on the 10th and 0 on the 1's place. Now let's learn about the place values of the digit. अब हम लोग place value की तरफ आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखो ध्यान से. What is the place value of this one? The place value of this one. Okay, listen. मैं कहाँ लिखूँ? यही लिखता हूँ. एक मिनट. Give me a 1 minute please. Let me erase this number. ठीक है. Okay. Now listen. If there is a number 1, 1, 1 and 1. This is 1111. We know that this is 1111. Okay. I'm taking this example because it is very, very easy to understand. Okay. What is the place value of this one? We know that this one is at the ones place. So the place value is 1. Yes. The place value of 1 is 1. Now what will be the place value of this one, which is on the 10th place? The place value of this one is 10. I'm not asking the place, okay? Place value, okay? It is 10. And the place value of this one is 100. And the place value of another one is 1000. So you can observe that the place value of 1 is increasing 10 times if I'm moving from राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. ओके, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ. ठीक है, लिसन केयरफुली. इफ आई विल गो, लिसन, दिस इज वंस प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 is 1, but here the place value is 10. Means what? If I move from the ones place to 10th place, the place value is 10 times. Means what? 10 times. Multiply by 10. Multiply by 10. अगर मैं वंस प्लेस से 10th प्लेस की तरफ मूव करता हूं तो मेरी जो प्लेस वैल्यू है उस डिजिट की 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, इफ आई विल गो फ्रॉम दी 10th प्लेस टू 100 प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट अगेन इंक्रीजेस 10 टाइम्स, फिर से 10 गुना बढ़ जाएगी. If I will move from the 100 place to the 1000 place, the place value of the digit increases 10 times. Means what? Whenever I will move, आपका लेफ्ट और आपके राइट की बात कर रहा हूं मैं.
ठीक है, मेरे लेफ्ट और मेरे राइट की तरफ मत जाओ, आपके लेफ्ट और आपके राइट की तरफ जानी आपको अज्यूम करना है। ठीक है, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सो when you will move from right hand side to the left hand side in the place value chart, okay, if you are just shifting your place by, okay, you are shifting place from ones to tens, place value increases 10 times, tens to 100, place value increases 10 times, 100 to 1000, place value increases 10 times. ठीक है, if you are moving from ones to tens, tens to 100, 100 to 1000, आफ्टर ईच प्लेस, हर प्लेस के बाद आपकी वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। वेरी गुड है जी, बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात बताया आपने सर, ये तो आपने पहले बताए थे। हाँ, आई नो दैट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव फ्रॉम, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, है ना। जब भी मैंने क्या किया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 10 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, सो आई गॉट दी 100। व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दी 100 बाय 10, सो आई विल गेट दी 1000। आई गॉट दी 1000। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिवाइडिंग दिस 1000। मैं इस 1000 को क्या करूंगा? 10 से डिवाइड करूंगा। आई विल डिवाइड बाय 10, सो आंसर विल बी 100। यस, अगर मैंने 1000 को 10 से डिवाइड किया तो क्या होगा? वो जीरो, 10 का जीरो जो है वो और ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 आएगा सिर्फ आंसर। यस, क्वेश्चन विल बी 100। इफ आई विल डिवाइड द 100 बाय 10, 100 को से 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, फिर से 10 से डिवाइड कर तो 1 आ जाएगा। मीन्स व्हाट? इफ आई विल मूव फ्रॉम द 1000 प्लेस टू 100 प्लेस, प्लेस वैल्यू डिक्रीजेस 10 टाइम्स। क्या हो जाएगा? दैट इज डिवाइड बाय 10। क्या होगा? इधर से इधर मल्टीप्लाई बाय 10 किया, अब इधर से उधर जाऊंगा तो क्या होगा? डिवाइड बाय 10 होगा। इफ आई विल गो फ्रॉम 100 टू 1000, सॉरी 100 टू 10, अगेन डिवाइड बाय 10। ओके, if I will go from 10 place to the ones place, the place value decreases 10 times. Means what? Again divide by 10. Okay, फिर से क्या होगा? डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 होते जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि मान लो, ध्यान दो अभी, हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इधर, सब जन इधर देखो अच्छे से। यस, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ डेसिमल। मैं डेसिमल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी नजर बोर्ड पे से हटाना मत। ठीक है, कुछ ज्यादा ही गीला हो गया लगता है मुझे। ठीक है, चलो, नाउ लिसन केयरफुली। आई हैव द नंबर 500। इफ आई विल डिवाइड द 500 बाय 10, अगर मैंने 500 को 10 से डिवाइड किया, सो आंसर विल बी 50। क्या होगा आंसर? 50 आ जाएगा। वेरी गुड। अगर मैंने 50 को फिर से 10 से डिवाइड किया, मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिवीजन बाय 10? मतलब क्या है डिवाइड बाय 10 का? डिवाइड बाय 10 का मतलब ये है कि मैंने उसके 10 पीसेस किए। मीन्स व्हाट? आई एम डिवाइडिंग दिस 500 इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? अरे 10 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ? यस, स्पीक लाउडली। 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू, एक्चुअली नाउ आई एम डिवाइडिंग द 50 बाई 10। मैं 50 को फिर से 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर 5 आ जाएगा। 5 10 जा 50। देखो क्या हो रहा है, 500 कहाँ था? 100 प्लेस पे था। कौन से प्लेस पे था? 100 प्लेस पे था। अरे कौन से प्लेस पे था भैया? जोर से बोलो, मम्मी तक आवाज जाना चाहिए। 100 प्लेस पे था। वेरी गुड। जैसे ही मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो 5 भैया जो बैठा था 100 वाली कुर्सी पे, दैट मीन्स व्हाट? बिफोर डिवाइडिंग बाय 10, द 5 इज ऑन द 100 प्लेस। एज सुन एज आई डिवाइडेड बाय 10, 5 शिफ्टेड ऑन 10 प्लेस। जैसे ही मैंने 10 से डिवाइड किया, ये 5 10 प्लेस पे शिफ्ट हो गया। इट इज वंस इट इज टेंस प्लेस पे आ गया। जैसे ही मैंने 10 से डिवाइड किया, 5 100 से उठ करके 100 से कहाँ शिफ्ट हो गया? 10 प्लेस पे शिफ्ट हो गया। वेरी गुड है जी, कितनी अच्छी बात है सर। फिर से 10 से डिवाइड कर दिया। 50 को मैंने क्या किया? फिर से 10 से डिवाइड कर दिया। अब क्या हो गया? जो 10 प्लेस पे था, अब वो
वंस प्लेस पे चला गया। कौन से प्लेस पे चला गया? वंस प्लेस पे चला गया। यस, 500 में ये 5 की जो वैल्यू है इट इज 500, ये 5 की जो वैल्यू है दैट इज 50 एंड दिस इज ओनली 5। Means what? Here the place of 5 is 100 place. Here the place of 5 is tens place. Here the place of 5 is ones place. नाउ माई क्वेश्चन इज, अब सवाल आ रहा है, अगर मैंने इस फाइ को ध्यान से देखो, मैं डेसिमल में आगे जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द, इट इज द एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। अब ये एंट्री पॉइंट है, ये क्या है? एंट्री पॉइंट है डेसिमल का। मैं जा रहा हूं डेसिमल के एंट्री में, ठीक है। इधर 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 देखो, एंट्री में जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने इस फाइ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो आई विल गेट वन मोर प्लेस एंड दैट प्लेस विल बी आफ्टर दी वंस प्लेस। देखो, जैसे 1000 प्लेस था, 1000 से छोटा प्लेस 100, 100 से छोटा प्लेस है 10 एंड वंस इज ऑल्सो स्मॉलर देन 10। ओके, जैसे जैसे मैं शिफ्ट हो रहा हूं, 10 10 10 गुना, 10 टाइम्स डिक्रीज, 10 decreases 10 times, decreases 10 times, decreases 10 times. Now what I'm doing, I'm dividing this one whole. That means what? 5 whole part is there. यहाँ पे 5 लिया है मैंने. So it is on ones place. 5 is on the ones place. Yes, my dear students, 5 is on the ones place. So when I will divide the 5 by 10, जब मैं इस 5 को फिर से 10 से डिवाइड कर दूंगा, तब ये 5 1/10 प्लेस में चला जाएगा। कौन से प्लेस में चला जाएगा? 1/10, because is what? It is only 1. What is the meaning of 1? This. Wait a minute. Let me tell you. It is 1. This is tens place. This is the 100 place. This is the 1000 place. Okay. देखो, एक जीरो कम हो गया, फिर से एक जीरो कम हो गया, अब सिर्फ 1 बचा है। नाउ आई एम डिवाइडिंग बाय 10। जैसे ही मैं 10 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट one more place, and that place is 1/10 place. It is your 10th place. कौन सा प्लेस है ये? 10th place. 10th place means what? Here I will write how many 1/10 parts are there. जैसे ही मैं 5 को 10 से डिवाइड करूंगा, I will write it as a 0.5. This is the ones place, my dear. What? This is the ones place, and the place after the ones place is, ones place के उधर साइड वाला जो place है, that place is 1/10 place. 1/10 place. Here I will write 5. पहले 500 place पे था, फिर जाके शिफ्ट हो गया 10th place पे, फिर चला गया ones place पे. Now it will shift on 1/10 place. Means what? It is a 10th place. Now the question arises that why we need that point? ये पॉइंट काय के लिए चाहिए भैया हमको? बिकॉज अब देखो, मुझे 225 लिखा है, ओके, एंड दिस इज 225। अब मैं, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और ये 1/10 प्लेस है, तो भाई पता कैसे चलेगा? हमेशा प्लेस थोड़ी लिखूंगा मैं, है ना? So what? Why we need that decimal point? Actually, this decimal point is separating. It is separating the whole part and the decimal part. Means what? When I will write the point, will this decimal point separate the ones place and the ones place, tens place, hundred place, whole part को fractional part से अलग कर देगा, ठीक है? So before the decimal point, it is the whole part. Means what? This is ones place, this is a tens place, okay, and after the decimal point there is a 1/10 place, 1/10 place, okay. Now when I will divide this 0.5 into, अगेन उसको फिर से 10 से डिवाइड कर दिया भैया। क्या कर दिया मैंने? उस 0.5 को फिर से 10 से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैं 0.5 को फिर से 10 से डिवाइड करूंगा, अब ये 5 भाई 100 पे था, धीरे से 1000 पे था, फिर पीछे आ गया, फिर पीछे गया, यहां आ गया, अब इसके और पीछे जाएगा। मीन्स व्हाट? व्हेन आई विल डिवाइड द 0.5 by 10, the answer will be 0.05. अभी यहाँ पे 0 आ जाएगा, अभी आगे खसक के 5 हो जाएगा। मीन्स व्हाट? 1/100 प्लेस, ओके। वो जो, ठीक है, जो ये 5 है, पहले कहाँ था, इसको मिटा दो 2 मिनट के लिए,
पहले 1000 प्लेस पे था, जैसे ही मैंने 10 से डिवाइड किया 100 प्लेस पे आ गया, जैसे ही मैंने फिर 10 से डिवाइड किया तो 10 प्लेस में आ गया, फिर से 10 से डिवाइड किया तो 1 प्लेस पे आ गया. नाउ आई हैव द 5 होल पार्ट. नाउ व्हेन आई विल डिवाइड द 5 होल पार्ट इनटू दी 10 इक्वल पार्ट्स, वो 5 जाके यहां शिफ्ट हो जाएगा. फिर से 10 से डिवाइड करूंगा तो 100th प्लेस पे. कौन सा प्लेस? 100th. कौन सा? 100th. It is not 100, it is 100th part. 1 by 100 part. Out of the 100 part, there is only one single part. So how many 100 parts are there? We will write here. y यहाँ shift हो जाएगा. अगर मैंने 0.05 को फिर से 10 से डिवाइड किया तो फिर शिफ्ट हो जाएगा. दैट इज 1/1000th part. कौन सा पार्ट? 1/1000th part. Okay. So I hope you got it. How the decimal came into the existence. Actually, when the one into 10 equal parts, we got one more place, and that place is after the decimal point, which is 1 by 10. If I will divide again by 10, it will be 1/100 place. The number will shift on 1 by 100 place. Then it will shift on 1/1000th place. Okay, I hope you got it. इसका best example है, if I said to you draw a diagram, draw a line segment of 5.2 सेंटीमीटर. अगर मैंने आपको बोला कि 5.2 सेंटीमीटर का, देखो ध्यान से समझो, 5.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे? आप 0 से लेके 5 तक आपकी जो स्केल है, यू हैव द रूलर. यस, फ्रॉम द रूलर you will start drawing the line segment from 0 to 5. आप 0 to 5 तक के तो बराबर खींच दोगे. But what is the meaning of that point 2? That point 2 is indicating that the 1 centimeter, look your ruler. In the ruler, there is what? A 1 centimeter is divided into 10 equal parts and you will take 2 parts out of the 10 parts. Okay? जो ये point 2, ये जो point के बाद जो 2 है, this is indicating that there is 2 parts out of the 10 parts. 10 पार्ट में जो वो 1 सेंटीमीटर जो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से सिर्फ हमको 2 पार्ट लेना है. ओके, सो हाउ मेनी? सो दिस पॉइंट 2 इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज 2 टाइम्स 1 by 10 पार्ट. कितने पार्ट? 1 by 10 के कितने पार्ट है वहां पे? 2 है. कितने हैं? 2 पार्ट है. ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट द ओरिजिन ऑफ डेसिमल. डेसिमल कैसे आया है. ठीक है, बहुत इजी है. फिर से बताता हूं मैं, 1 मिनट, बस 2 मिनट आपके लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा. ठीक है, हाँ. ओके, लिसन. When I will divide the 500 by 10, the number will be 50. जैसे ही 50 को फिर से 10 से डिवाइड करूंगा तो 5 10s are 50. पहले 100 प्लेस में था, फिर 10 प्लेस में चला गया, फिर 1 प्लेस में चला गया. जब मैं 5 को फिर से 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.5 बन जाएगा. जैसे ही मैं 0.5 को फिर से 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.05 बन जाएगा. जैसे ही मैं 0.05 को 10 से डिवाइड करूंगा ये 0.005 बन जाएगा. So what is exactly happening? The 5 is shifting from place. 100 to tens, tens to ones, ones to tens after the decimal point. to 100, 100 के बाद पहुंच गया थाउजेंड के ऊपर पहुंच गया. ठीक है, ऐसे क्या हो रहा है? वो डेसिमल पॉइंट जो नंबर है वो शिफ्ट होता जा रहा है. ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेसिमल. आज के दिन बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर. बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय.